The domestic LPG production has been maximized. शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable. And we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG. What are today's headlines? What are the headlines that affect the poor people of India? The Modi Sarkar has announced that it is cutting the number of LPG cylinders that will be provided to Ujjwala beneficiaries from 9 to 4. जो एक आम आदमी है वो कैसे कैसे पाई पाई जोड़ के अपना घर चलाता है वो वही जानता है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र का त्यौहार, लोकतंत्र के त्यौहार के बारे में अक्सर बात करते हैं और आज अपने शासनकाल की 12वीं वर्षगांठ पे उन्होंने भारत के निवासियों के तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिलते थे, हालांकि उनका रेट तो लगातार बढ़ता रहा है, आज उन्होंने घोषणा की कि 9 से 4 तक काटा जाएगा। अब लोग अपने चूल्हे जलाना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। ये मैं मानता हूं कि ये 12 साल का जो उनका रिकॉर्ड है उसका एक प्रतीक है। Residents across towns and cities in the country woke up on Sunday to news over 29 rupees increase in the price of domestic cooking LPG cylinders. This marks the second LPG price hike in 3 months as state-owned fuel retailers continue to grapple with high global energy costs. The increase follows a 60 rupees per cylinder hike on March 7th after the conflict in West Asia disrupted global energy supplies and drove up international fuel prices. Many consumers say the latest increase will place a significant burden on household budgets of ordinary families. और इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि जो एक आम आदमी है वो कैसे कैसे पाई पाई जोड़ के अपना घर चलाता है वो वही जानता है। बहुत लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक मोर देन 70% की आबादी है वो अभी भी एक कह सकते हैं एक आम जीवन ही यापन कर रही है। उनको एक एक पाई पाई की ही कीमत उनको समझ में आती है। तो इस तरीके से अगर दाम बढ़ेगा तो हर चीज़, चाहे कोई भी प्रोडक्ट, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ों के दाम पे फ़र्क पड़ता है। वहीं अब LPG का दाम बढ़ा है तो लोगों की रोटी थाली का दाम बढ़ जाएगा। सब पे असर। हम लोग शहर में रहते, बताइए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग खुलता खरीद लिया करते थे, अब 300-400 रुपये 500 रुपये के लिए खुलता गैस मिल रही है। Some people, however, say that higher energy prices are unavoidable due to the international situation. तो जो गैस आ नहीं रही पीछे से, तो इसमें सरकार का कोई काम वो नहीं है। भाई पीछे से युद्ध छिड़ा हुआ है, जो वहाँ से चीज़ नहीं आएगी तो आगे हमें कहीं भी तो मिलेगी। चाहे हम पेट्रोल ले लें, चाहे हम सिलेंडर ले लें, कोई भी चीज़ में गवर्नमेंट का हक नहीं है। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, इसमें कोई गलती थोड़ी है जी। महंगाई सबके लिए, एक आदमी के लिए थोड़ी है जी। हाँ जी। वजह क्या है अगर माने तो? वजह क्या है, ये जो हमारे देश के ऊपर भार चल रहा है उसी की महंगाई है। ये सब हर चीज़ पे गैस पे बढ़े, सिलेंडरों पे बढ़ गए, CNG पे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। तो सर महंगाई तो सबके लिए है, हमारे लिए अकेले के लिए थोड़ी है। The LPG price hike comes amid a broader round of fuel price increases. Petrol and diesel prices have been raised by a cumulative 7 rupees 50 paise per litre since mid-May, while compressed natural gas rates have increased by about 6 rupees per kg. The domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the LPG day, World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day, about 52, 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels. We haven't had any news of dry out at LPG distributorships. LPG backlogs have now reached less than 4 days. Online LPG cylinder bookings have reached 99% and DAC, delivery authentication code, is about 96%. During the last 4 days,
the gap between the last conference and today. LPG cylinder bookings were about 42 lakhs per day. Deliveries were 44 lakhs per day. And then on the commercial LPG side, we are reaching the pre-crisis level. As I mentioned, the stocks are now very comfortable. We sold about 6 TMT per day, our OMCs. पहला दावा था कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। 2024 तक $5 ट्रिलियन का जीडीपी भारत में होगा, ये उनका 2019 में दावा था और हकीकत 4 ट्रिलियन से भी कम है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बजाय छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में भारत है और लगातार जो रैंक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। और एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, एक बड़ा कारण है रुपए की तेजी से गिरना। अब 97 तक तो 97 पार हो चुका है, 100 पास आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने कहा था कि 100 इज जस्ट अ नंबर, तो फिर 110 इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर, 120 इज जस्ट अ नंबर, 150, तो ये कब तक गिरता रहेगा और सिर्फ नंबर रहेगा? इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। महंगाई बढ़ती है, तेल का रेट बढ़ता है, जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उनका रेट बढ़ता रहता है, तो इससे बहुत भारी एक गहरी संकट हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है। एक और बात मैं आपको के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है, कुछ दिन पहले 7.7 का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया था। जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, पूर्व सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम खुद ने कहा है कि जब यूपीए के समय जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था, सच्चाई से 1.5 कम दिख रहा था और मोदी सरकार के शासनकाल में 1.5-2% ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि एक तरफ वो जीडीपी का रेट आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं और लेकिन फिर भी हमारा जो जीडीपी टारगेट है वो मिस होते जा रहा है। तो आप बताइए, ये निकम्मापन जो है इससे साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, 2.1 लाख करोड़ रुपए भारत छोड़ के चले गए हैं। आपको याद है कि जो वित्त मंत्री खुद ने कहा है कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन ईडी सीबीआई के रेड्स होते हैं। अब पहले वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो खुद दुबई, लंदन, सिंगापुर चले गए हैं और अब अपना पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये है हमारी मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों का इम्पैक्ट।